students. So in the next session of D block elements, we are going to discuss about some new properties of transition elements or D block elements. Okay. Up till now, we have been discussed about atomic size, second oxidation state, third ionization, enthalpy. These many points we have been so far discussed, and now we are moving towards the next property of transition elements. Okay, in atomic size we find that from left to right in a period atomic size decreases. The same trend has been observed in the D block elements. Oxidation state, they have variable oxidation states. They can produce empty d orbitals, that is why they have various oxidation state or variable oxidation state ranging from +2 to +8. In osmium it is up to +8. Okay, ionization enthalpy, the first ionization enthalpy, they are less electropositive as compared to S block elements. So their ionization enthalpy is somewhat greater than S block and lesser than P block because they are sandwiched between the S block and P block. Okay. So what we will find, the first ionization enthalpy it will be lesser one, second ionization enthalpy it will be greater one, and third ionization enthalpy, if you count the successive ionization enthalpies will be more in energy because the increased oxidation state, as we will move first ionization enthalpy to second ionization enthalpy to third ionization enthalpy, the improved oxidation state or increased oxidation state will increase effective nuclear charge because the number of electrons as compared to number of protons in the nucleus will be decreased down. Okay, it will decrease. Okay, it will come down. So that is why the effective nuclear charge will increase. So successive ionization enthalpies will be greater. Okay. The next property that we are going to discuss is metallic character of D block elements. All the elements belonging to D block elements are metallic. So first property is metallic property. As we have been discussed so far, that they have a very strong metallic covalent bonds. Their empty d orbital produces many types of bonds. That is why they show very hard, rigid, compact structure. They work as metal. They produce luster also, and the lower oxidation states shows ionic bond. Lower oxidation states shows ionic bond, whereas higher oxidation state shows covalent bond. This particular higher oxidation state, which produces empty d orbitals, are responsible for formation of complexes or coordination compound in D block element. ट्रांजिशन एलिमेंट में एक प्रॉपर्टी रहती है कि वो अपने D ब्लॉक के यानी D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को एम्प्टी कर सकता है या फिर वैकेंट बना सकता है, और इसी के चलते वो बहुत सारी लिगैंड्स यानी लोन पेयर जो डोनर रहते हैं उनके साथ में टाइप होके वो कॉम्प्लेक्सेस बनाता है या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, बराबर। तो ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके लिए वो एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, और पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में जाने की वजह से वो कॉम्प्लेक्सेस या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। और हमें पता है कि जब कभी भी कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी एटम हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो नेचर ऑफ बॉन्ड यूजुअली कौन सा रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। सो आई एम जस्ट reminding you that lower oxidation state
produces ionic compounds and higher oxidation states of transition element produces covalently bonded compounds. Okay, now in the metallic character, certain points has been given. The complexes or the lattices we know that lattice it means the particular geometrical shape which is held by a particular particle of a substance. कोई भी चीज जब नेचुरली किसी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप में खुद को ढालती है या फिर खुद को डेवलप करती है, तो उस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप को हम बोलते हैं लैटिस, क्रिस्टल लैटिस. ओके, और ये क्रिस्टल लैटिस जो रहते हैं वो जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट में HCP, CCP और BCC HCP, CCP और BCC HCP हेक्सागोनल क्यूबिक पैक स्ट्रक्चर, CCP और BCP या फिर BCC आप बोल सकते हैं उसको BCC. तो these are the packing methods. आप when we will discuss about the solid state material or solid states, in that particular solid state you will come to know this type of lattices are formed. हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर या फिर क्यूबिकल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर क्लोज पैक स्ट्रक्चर. ये कोई जब किसी चीज का क्रिस्टल डेवलप होते रहता है तो वो क्रिस्टल को से ज्योमेट्रिकल शेप में या फिर उसकी पैकिंग सिस्टम कैसे रहेगी, उसका नेचर ऑफ सॉलिडिफिकेशन कितना रहेगा, या कितना डेंस रहेगा, उसकी डेंसिटी कितनी रहेगी, वो डेंसिटी इनमें से एक पैकिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, HCP, CCP, BCP. ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर और बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैक स्ट्रक्चर और बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर, आप उसको भी ये भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो दीज पर्टिकुलर लैटिसेस और क्रिस्टल लैटिसेस विल डेवलप इन अ सॉलिड फेज. तो मेटल जो है वो इन प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, या फिर मेटल लैटिस जो रहेंगे यानी ट्रांजिशन एलिमेंट में जो मेटल लैटिस रहेंगे वो इस प्रकार से डेवलप होगी बेटा. ठीक है, इसके बाद में ये जो आप अगर आपकी किताब में देखते हो तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट आपकी किताब में जो दिया हुआ है ट्रेंड्स इन द मेल्टिंग पॉइंट अगर देखते हैं तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट उनका बढ़ते जाएगा. हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट. एंड फॉर दैट पर्पस क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, chromium, molybdenum and tungsten have very high melting points. Tungsten having highest melting point amongst the all because of empty d orbitals or vacant d orbitals. Vacant d orbital यानी क्या, unpaired electron जिसमें ज्यादा रहेंगे, that produces higher melting points. Then afterwards if you go to the graph of melting point from left to right in a period, in a particular series, we can say in the 3D series, 4D series, 5D series, as we move from left to right, the graph will increase, means the melting point up to the mid of the series it will found to be increased and then it will gradually decrease. Okay, तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, more the number of unpaired electrons will be, higher will be the melting point. जैसे उनका पेयरिंग शुरू हो जाएगा मिड ऑफ एलिमेंट के, मिड ऑफ सीरीज के बाद में जब पेयरिंग शुरू हो जाएगा तो आफ्टर स्टार्टिंग द पेयरिंग ऑफ द एलिमेंट, ओके, द मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज. इन दैट केस मैंगनीज एंड टेक्नीशियम, मैंगनीज एंड टेक्नीशियम
have abnormal behavior in melting point. They have anomalous melting points. Okay. Then afterwards, after discussing the metallic property, now we are moving towards next property of transition element, that is magnetic property. Magnetic property. We have been previously discussed that there are certain types of magnetism. Some substances are paramagnetic, some substances are diamagnetic, and certain substances are also called as ferromagnetic. Paramagnetic are those substances which are being attracted by मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं उनको बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. दूसरा है डायमैग्नेटिक. The substance repel the magnetic field. The substance which repels the magnetic field or the substance which is being repelled by the magnetic field, यानी दोनों में जमेगी नहीं. कोई चीज ऐसी रहती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, कोई फील्ड ऐसी रहती है या कोई सब्सटेंस ऐसा रहेगा जो जिसको मैग्नेटिक फील्ड एक तो रिपल करेगी या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करेगा, यानी दोनों में जमेगी नहीं. सब्सटेंस और मैग्नेटिक फील्ड में नहीं बनती है, उन्हें बोलेंगे हम डायमैग्नेटिक. और फेरोमैग्नेटिक कैन प्रोड्यूस परमानेंट मैग्नेटिज्म. ऐसे कुछ सब्सटेंस रहते हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्पेशली ये तीन चीजें हैं जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स करते हैं या फिर उसको फेस करते हैं तो उनमें खुद में परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है. सो वी हैव थ्री सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. नाउ व्हाट इज पैरामैग्नेटिक एंड हाउ दे बिहेव एज पैरामैग्नेटिक. तो ध्यान में रखिए, ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, वैकेंट या फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्पीसीज, वी विल नॉट से एटम ओनली, दोज स्पीसीज विच हैव unpaired electron in their orbitals, okay, can behave as paramagnetic. They can attract magnetic field or can be attracted towards magnetic field. Those species may be atomic or ionic. Those species which may be atomic or ionic have all paired electrons in their outermost shell or all paired orbitals. उनके सभी के orbitals जो है वो paired है. ऐसे स्पीसीज को हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक, क्योंकि वो ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता और मैग्नेटिक फील्ड को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, उल्टा वो रिपेल करते हैं दोनों एक दूसरे को. ठीक है. और तीसरा, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आई रिपीट, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, आई रिपीट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिसमें काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाता है. ठीक है ना. ऐसे एलिमेंट्स जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम इतना बढ़ जाता है कि वो परमानेंट मैग्नेटिज्म भी अपने खुद में ले सकते हैं. ठीक है. सो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. एज we know that there are so many oxidation states of transition elements, means they have variable oxidation states. So as they have various oxidation states,
some of the species after giving electron becomes having unpaired electrons in their outermost shell or outermost orbitals. उनके बाहर वाले ऑर्बिटल में कभी कभार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे या फिर कभी कभार स्पीसीज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी दिखाते हैं, यानी कोई चीज मैग्नेटिक है या नहीं वो स्पीसीज के अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, जनरली 3D सीरीज जो है दो प्रकार के एंगुलर मोमेंटम से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। 3D सीरीज में स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज सफिशिएंट टू कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू 3D सीरीज। 3D सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, उनके सभी के एंगुलर मोमेंटम गिनने के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो सफिशिएंट रहता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 4D 5D सीरीज में रहता है क्योंकि उनका डिफ्यूजन पावर बढ़ता है, बराबर है। 4D सीरीज और 5D सीरीज में जो ऑर्बिटल्स रहते हैं वो काफ़ी डिफ्यूज रहते हैं, उनके ओरिएंटेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए उनको भी कैलकुलेट करना या फिर उनको भी कंसिडर करना ज़रूरी हो जाता है किसी भी 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए। पर 3D सीरीज के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम काफ़ी रहता है। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्पिन ओनली फार्मूला mu is equal to under root of n in bracket n plus 2 और इसको कैलकुलेट किया जाता है DM बोहर मैग्नेटॉन। दिस यूनिट इज बोहर मैग्नेटॉन। हमने ये इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, वेयर म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक character or magnetic property of the particular substance, where mu is the magnetic momentum and n is unpaired electrons which are present in that particular element। n वो electrons है जो unpaired है और वो present है उस element में। this is the formula by which you can calculate the magnetic momentum of the particular element। mu is equal to n in bracket n plus 2 under root of n plus in bracket n plus 2 Bohr magneton is the unit of calculating the magnetic property of the element। okay, now as in this session only I use the word that transition element produces complexes or you can say coordination compounds। ये coordination compound में एक सेंट्रल मेटल एटम रहता है और उसको बहुत सारे लोन पेयर डोनर जिनको यूज किया जाता है वर्ड लिगैंड अटैच करते हैं। अगर कोई मेटल लैटिस या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई कंपाउंड पानी में डाला जाता है तो इट बिकम्स हाइड्रेटेड। हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इट बिकम्स अ लिगैंड। आई रिपीट, वाटर मॉलिक्यूल बिकम्स अ लिगैंड बिकॉज इट कंटेन्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो लिगैंड करके बिहेव हो सकता है, वो अपनी लोन पेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर सकता है। किसके? सेंट्रल मेटल एटम के, जो जनरली क्या रहता है, डी ब्लॉक एलिमेंट वाला या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब अगर मुझे किसी एलिमेंट की या फिर उस कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर कैलकुलेट करना है तो उसके हाइड्रेटेड फॉर्म में
या फिर उसके एक्वेस फॉर्म में मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस और द ट्रांजिशन एलिमेंट और सेंट्रल मेटल एटम बाय यूजिंग द नेचर एंड ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस which are prepared by the transition element. Okay. Okay, then the magnetic moment, they have been stated that the magnetic moment is also temperature डिपेंडेंट, यानी हमें सीरीज कौन सी है ये भी देखना पड़ेगा। स्पिन ओनली क्वांटम, स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए टेम्परेचर, ये भी फैक्टर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा या फिर ध्यान में रखना होगा। अब एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी हम देखने को जा रहे हैं। आपको बीच में कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो कितना मोमेंटम रहेगा, क्या रहेगा। सिंपली आपको उसमें कैलकुलेट करते वक्त सिंपली आपको इसमें ये ऐड करना है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और उसके कैलकुलेशन करने के बाद में अंडर रूट की वैल्यू निकालना है, जो आप लॉग टेबल से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। नाउ the next property is very peculiar and fantastic property which is shown by the transition elements. Transition elements produces colored compounds. Transition element produces colored compounds. Whereas in case of S block and P block elements, generally S block elements, their compounds are whitish in color, which may be termed as colorless. But if you find the elements which are belonging to D block elements or transition elements, their compounds are generally colored compounds. अब ऐसा क्यों होता है ये ध्यान में रखिए। देखिए, हम d ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम d ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। d ऑर्बिटल has 5 suborbitals xy, yz, zx, x square, y square and z square। ठीक है। ये जो ऑर्बिटल्स रहते हैं इनको बोलते हैं हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। Degenerate orbitals are those orbitals. Degenerate orbitals are those orbitals which have similar energy, same amount of energy they have. यानी इन orbitals में amount of energy क्या रहेगी? Same रहेगी। Excuse me. Okay. इनमें amount of energy same रहेगी। ये है xy, yz, zx, x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब ये ध्यान में रखिए, कोई भी एलिमेंट अगर कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और वो एनर्जी लेके, ये कोई समझ लीजिए एलिमेंट है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्सॉर्ब करी, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट करेगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एब्सॉर्ब एंड एमिटेड विल नॉट बी सेम।
some amount of energy will be stored by the substance। तो ये सब्सटेंस जब उस एनर्जी को स्टोर करेगा तो उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। कहाँ पे? द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट इट विल मूव टू एक्साइटेड स्टेट। अब ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को फिर से वापस आएंगे, आई रिपीट, किसी एलिमेंट ने अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करी और फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करी, जब वो एब्जॉर्ब करी हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में आते वक्त वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर फेंकेगा। दैट पर्टिकुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, पर्टिकुलर wavelength, if that wavelength lie within the visible spectrum of electromagnetic spectrum, ये जो वेवलेंथ उसने एमिट करी है वो अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है तो क्या होगा? विजिबल स्पेक्ट्रम में हर एक वेवलेंथ का अपना एक पर्टिकुलर कलर रहता है। यही डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है। डी ऑर्बिटल के जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, समझ लीजिए कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बराबर है? कोई एक एलिमेंट है जिसके पास में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसिटी यानी सिमिलर एनर्जी वाला पावर खत्म हो जाता है। समझ लीजिए एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ऐसे ये 5 डी ऑर्बिटल है। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू, पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी। जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है और वो अगर एक्साइट हो जाता है तो ये जो डी ऑर्बिटल्स है, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ये स्प्लिट हो जाते हैं यहां से 2 सेट में। जो 3 रहते हैं उसको बोला जाता है T2G और जो 2 रहते हैं उनको बोला जाता है EG। आई रिपीट, ये जो 5 ऑर्बिटल्स है, ये 5 ऑर्बिटल्स, 5 सब ऑर्बिटल्स, 3 सब ऑर्बिटल वाले T2G और 2 सब ऑर्बिटल वाले EG में स्प्लिट हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्स। ये सब कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम फिर से देखने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा नहीं। डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्स, लोअर एनर्जी वाला, आप समझ लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो EG में है, ये ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट वाला क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। यानी ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ गया? एक्साइटेड स्टेट में गया। और एक्साइटेड स्टेट में फिर से थोड़ी देर के बाद में कहाँ जाएगा? वो ग्राउंड स्टेट में। तो ये करते वक्त एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करेगा। दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ इफ लाइज विद इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर वो विजिबल बैंड में आता है तो इट विल एमिट अ पर्टिकुलर कलर। और इसीलिए ये s ऑर्बिटल में पॉसिबल नहीं है, p ऑर्बिटल में पॉसिबल नहीं है, मगर d ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल के एक सेट से d ऑर्बिटल के दूसरे सेट में ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। आई रिपीट, d ऑर्बिटल ही स्प्लिट हो रहे हैं 2 एनर्जी लेवल में और एक सेट से दूसरे सेट में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में ही जा रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है dd।
ट्रांजिशन। क्या बोला जाएगा बेटे सर? dd transition. What is meant by dd transition? dd transition is that type of transition where electron move from d orbital to the d orbital, but it moves from brown state of d orbital to excited state of d orbital, where splitting of degenerate orbitals of d will take place in two sets T2g and Eg. Okay, so as this particular phenomenon, that is dd transition, takes place in several oxidation states of several transition elements. ऐसे कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन सभी में ये dd ट्रांजिशन अवेलेबल होता है या फिर पॉसिबल होता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ट्रांजिशन एलिमेंट जिनमें dd ट्रांजिशन पॉसिबल है, वो सभी के सभी कंपाउंड, वो सभी के सभी एलिमेंट्स वही कंपाउंड बनाएंगे जो कलरफुल रहेंगे। और इसीलिए अगर आप इफ यू गो थ्रू योर बुक, यू विल फाइंड दैट देयर आर सेवरल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग देयर कंपाउंड्स वेरी फैंटास्टिक कलर दे आर प्रोड्यूसिंग। ओके, सम ऑफ इफ वी टेक द एग्जांपल्स, कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन अगर हम पानी में डालते हैं, they have given one example. I hope आपको dd ट्रांजिशन समझ में आ गया होगा ना? अब समझ लीजिए, कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन अगर बनाते हैं हम, कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन अगर बनाते हैं हम, तो इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स CO H2O6 plus 2. Okay, this type of complex cobalt hexahydrate का कॉम्प्लेक्स डाइपॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स बनेगा। हेक्साहाइड्रेट है यानी कोबाल्ट ने अपने 6 d ऑर्बिटल है, 6 ऑर्बिटल्स को वैकेंट कर लिया है। 6 ऑर्बिटल्स को अगर वो वैकेंट करता है तो 6 ऑर्बिटल वाला जो शेप रहेगा वो रहेगा ऑक्टाहेड्रल, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका शेप रहेगा ऑक्टाहेड्रल। मैंने क्या रिपीट किया? कोबाल्ट क्लोराइड को अगर पानी में डालते हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा। इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो रहेगा पिंक। दिस सॉल्यूशन विल बी पिंक कलर। बट इफ सपोज सेम कोबाल्ट क्लोराइड वी ऐड टू concentrated hydrochloric acid, if we add to concentrated hydrochloric acid, the complex will form like this: cobalt tetrachloride dinegative, and here 4 hybridized orbitals are obtained, so the geometry will be tetrahedral. यहाँ पे ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, और इसका जो कलर रहेगा वो रहेगा डीप ब्लू कलर। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज हो जाती है या फिर कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल शेप भी चेंज हो जाते हैं, ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है तो कॉम्प्लेक्स के नेचर भी चेंज हो जाते हैं। तो इन केसेस में क्या हो जाता है, जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। Okay, so what we identified in this particular discussion or in this particular session, that these properties, magnetic property or colorful compounds, is a very fantastic property of transition elements. हमने कलरफुल कंपाउंड में क्या देखा? कलरफुल कंपाउंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट में क्यों होता है? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टी दिखती है या फिर कौन सी प्रोसेस होती है? डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की वजह से वेवलेंथ अगर वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब डी ऑर्बिटल वाला डी ऑर्बिटल में ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जब लिबरेट करेगा, दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है, और ये कहाँ पे होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ट्रांजिशन एलिमेंट में, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट की वो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड होते ही है। ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसी स्पीसीज कलरफुल कंपाउंड दिखाते हैं। वो जो कलरफुल कंपाउंड दिखाते हैं
वो कलर डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स कौन से शेप का बना है, यानी ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज द कलर ऑफ द कंपाउंड. ओके, सो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी we will sum up the session with certain points that the color of the transition state element or transition state compound depends upon one, presence of unpaired electrons. सेकंड, dd ट्रांजिशन, ऐसी स्पीसीज जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बराबर है. dd ट्रांजिशन है, dd ट्रांजिशन हो सकता है, और dd ट्रांजिशन कहां पे होगा? जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. दूसरा, नेचर ऑफ द लिगैंड, अटैच्ड टू ट्रांजिशन एलिमेंट. नेचर ऑफ द लिगैंड, जैसे मैंने कोबाल्ट हेक्साहाइड्रेट में बताया था कि वाटर इज वर्किंग एज ए लिगैंड, कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड में बताया था कि क्लोराइड इज वर्किंग एज अ क्लोराइड आयन वर्क एज अ लिगैंड. तो कौन सा लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को अटैच है उसके ऊपर भी उसका कलर डिपेंड करेगा. कोबाल्ट हेक्साहाइड्रेट में हमने देखा था पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स है या फिर पिंक कलर का सॉल्यूशन देता है, और कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड में हमने देखा था कि वो डीप ब्लू कलर का दिखाता है, बराबर. और चौथा है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स वगैरह कैसा रहता है हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे या फिर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट में देखेंगे. पर यहाँ पे ये ध्यान में रखिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे प्रोफाउंडली शोज द कॉम्प्लेक्स नेचर और दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस. ओके, सो नेचर and geometry of the complex formed by the transition एलिमेंट. तो कौन से कलर का कंपाउंड रहेगा और कलरफुल कंपाउंड रहेगा या नहीं रहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, dd ट्रांजिशन, नेचर ऑफ लिगैंड और नेचर एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांजिशन मेटल. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद द टू मेजर प्रॉपर्टीज, magnetic property and the colorful compounds formed by the transition elements. In the next session we will try to discuss one process is there which is need to be discussed. तो मैं अगले सेशन में आपको dd ट्रांजिशन थोड़ा एक बार और से समझा के दूंगा, उसके बाद में ही चार्ज ट्रांसफर करके एक प्रोसेस रहती है वो समझ में आएगा. सो अप टिल नेक्स्ट सेशन, गुड बाय.